My dear students and good student of the college, today we discuss about silo subgroups, silo theorem, and their applications. Before going to further, firstly we define silo P subgroup. Let P be a prime number such that P raised to the power k divides order of G, but P raised to the power k plus 1 doesn't divide order of G, then a subgroup of order P raised to the power k is called a silo P subgroup of G. Now we are thinking, क्या ऐसा सबग्रुप ऑलवेज एग्जिस्ट करता है? तो साइलोज फर्स्ट थ्योरम let P be a prime number such that Pm divides order of G, where M is a positive integer, then G has a subgroup of order P raised to the power M. कैसे करेंगे? प्रूफ. We shall prove the theorem by induction on order of G. यदि order of G, if order of G is 1, then 1 is the only which divides 1, and every group has a subgroup identity of order 1. This means theorem is trivially true. This theorem is true for order of G is equal to 1. Our induction hypothesis. Now, induction hypothesis क्या होगी? We assume that theorem is true for all groups of order less than order of G. Okay? तो हम इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? If G dash is a group such that order of G dash is less than order of G and Pk divides order of G dash for some integer k, there exists a subgroup H of G dash whose order is Pk.
ये कहने का मतलब है इंडक्शन का। यहां पर हम दो केस कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? इफ PM divides the order of a proper subgroup से H, हमने मान लिया कि PM जो है एक प्रॉपर सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी PM डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H where H is proper subgroup of G. It means order of H is less than order of G. तो इंडक्शन थ्योरम क्या कहती है? H has a subgroup of order P raised to the power M, और H has a order of, hence इंडक्शन थ्योरम कहती है कि H has a subgroup of order P raised to the power M. It means G has a subgroup order P raised to the power M. Then by induction hypothesis on H, we obtained a subgroup of order PH from G. H, ये H का सबग्रुप है। H किसका सबग्रुप है? G का सबग्रुप है। Hence this is also सबग्रुप ऑफ G। तो इस केस में तो हमारा काम हो गया खत्म। अब सेकंड केस लेना है। सेकंड केस क्या है? PM does not divides the order of a proper subgroup, यानी ऐसा प्रॉपर सबग्रुप है ही नहीं जिसको क्या डिवाइड करे? PM डिवाइड करे। यानी कि PM does not divides order of H for all proper subgroup H of G. Okay. Now we consider that order of G क्लास इक्वेशन होती है। ये हम लिखते हैं, देखो क्या। ओके, इस वर्ड को हम चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? हम कहते हैं A doesn't belongs to center. This implies that NA is not equal to G. Yes. ओके, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। इफ NA is not equal to G, this implies that NA is proper subgroup of G, and so by induction of this case, इस केस की इंडक्शन क्या है कि PM जो है अपने किसी भी प्रॉपर सबग्रुप को डिवाइड नहीं कर सकता। नाउ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ NA इनटू में ऑर्डर ऑफ NA। ओके, अच्छा जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। PM जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, बट
PM इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसको P की पावर कम से कम एक जरूर डिवाइड करेगी। P डिवाइड दिस फॉर ऑल A डजंट बिलोंग्स टू सेंटर। और आपने एक बात यहाँ कही थी थोड़ी देर पहले कि Na G के बराबर नहीं है। इसके जब सारी वो समेशन लोगे, जब Na G के बराबर नहीं है, या इसकी जगह पर लिख लो A डजंट बिलोंग्स टू सेंटर, order of G divided by order of Na must be divisible by P। और हमें एक बात और दे रखी है, P must divides order of group। तो इन दोनों के डिफरेंस को करेगा, इन दोनों का डिफरेंस होता है सेंटर। P डिवाइड सेंटर। सेंटर इज ऑलवेज ए एबिलियन ग्रुप। सेंटर इज ऑलवेज ए एबिलियन ग्रुप। या दूसरी बात कह सकते हैं, कोची थ्योरम से कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P। हमने कह दिया कि P सेंटर को डिवाइड करता है। देयर एग्जिस्ट A जो कि आइडेंटिटी नहीं है, बिलोंग्स टू सेंटर सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू P। इस P के A से जनरेटेड हमने एक सब ग्रुप बना लिया K, और इस K का ऑर्डर P होगा। अभी हमने बताया हुआ है कि A सेंटर में है। दिस इंप्लाइज दैट A की सारी पावर भी सेंटर में होगी। ठीक है, A की सारी पावर भी सेंटर में होंगी। दिस इंप्लाइज दैट K इज सब ग्रुप ऑफ सेंटर। ओके, K इज सब ग्रुप ऑफ सेंटर। हमने बताया था सेंटर के जो सब ग्रुप होते हैं, दे आर ऑलवेज नॉर्मल इन G। तो K इज नॉर्मल इन G। इसका मतलब G बाई K क्या हो गया, वेल डिफाइंड। नाउ ऑर्डर ऑफ G बाई K क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ K, ऑर्डर ऑफ G बाई P। दिस इंप्लाइज दैट देयर ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G। इसका मतलब इसके ऊपर इंडक्शन थ्योरम लगाने का रास्ता साफ हो चुका है। तो PM यदि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो PM माइनस 1 इसको डिवाइड कर सकता है। यस, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G बाई K। तो इसका मतलब इसके पास एक सब ग्रुप होगा किस ऑर्डर का, PM माइनस 1। हेंस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस थीसिस ऑन G बाई K, ठीक है, फोर डिवाइजर कौन सा लेना है यहाँ पर, P रेज टू द पावर M माइनस 1। GK must have a subgroup of order PM माइनस 1। उसका नाम रख दिया हमने T। तो ऑर्डर ऑफ T PM माइनस 1 होगा। नेक्स्ट चीज, GK के जो सब ग्रुप होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, L बाई K फॉर्म के होते हैं। वेयर L इज सब ग्रुप ऑफ G, जो किसको कंटेन करेगा, कंटेनिंग K। क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन ग्रुप वाइज थ्योरी फेल हो जाएगी। इसमें T इज इक्वल टू है L बाई K, कोई नहीं। तो ऑर्डर ऑफ T, ऑर्डर ऑफ L, ऑर्डर ऑफ K, ऑर्डर ऑफ T सॉरी ऑर्डर ऑफ L, ऑर्डर ऑफ T गुणा में ऑर्डर ऑफ K हो जाएगा। P रेज टू द पावर M माइनस 1 इंटू P, वी गेट ए सब ग्रुप T, सॉरी वी गेट ए सब ग्रुप L whose order is P raised to the power M। यही इस थ्योरम का हमारा मेन मोटिव था। ओके, नेक्स्ट। अब एक हम कोरोलरी की बात करने जा रहे हैं। क्या है कोरोलरी,
to prove that converse of Lagrangian theorem holds for all finite groups of prime power order. कैसे? यदि ग्रुप का ऑर्डर p रेज टू द पावर m है तो सिलो फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बताती है कि इसके बाद वन ऑर्डर का, p ऑर्डर का, p स्क्वायर ऑर्डर का, p रेज टू द पावर m ऑर्डर का सब ग्रुप होंगे. दिस इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ लैग्रांजियन थ्योरम इन फाइनाइट प्राइम ऑर्डर ग्रुप्स. ओके, so we think some things very good and better ways here. So you are thinking toward the new things each and every day. Now we are coming to some of the illustrations so that you get better thinking. If order of group is 45, point number 1, 3 divides 45, yes. 9 divides 45, yes. But 27 doesn't divide 45, yes. Okay, very good. Yes. तो अब बात करते हैं जो हमारी सिलो की थ्योरम थी. मैं थ्योरम पर बात आता हूं. थ्योरम, व्हाट थ्योरम सेज, लेट P बी ए प्राइम सब ग्रुप. ये है P बी ए प्राइम नंबर, Pm ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, वेयर M बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P रेज टू द पावर M. ओके, अब मैं यहां बात करता हूं. यदि हम थ्योरम लगाएं तो थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि इट हैज ए सब ग्रुप ऑर्डर 3, 9. इस दो बातों से. अब इसमें सिलो कौन सा है? 3 साइलो जो सब ग्रुप होगा ना उसका ऑर्डर यहां पर 9 होगा. ओके, सब ग्रुप इस ऑर्डर के जरूर होंगे बट 3 साइलो सब ग्रुप जो है और 9 ऑर्डर का. दूसरी क्वेश्चन, अब 5 जो है वो भी 45 को डिवाइड करता है, 25 नहीं करता. तो यहां पर जो साइलो 5 सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर 5 होगा. ठीक है. यदि हमसे कोई पूछी जाए दो क्वेश्चन कि इसके आधार पर आप कौन कौन से ऑर्डर के सब ग्रुप बता सकते हो, 3, 5 और 9 ऑर्डर के सब ग्रुप जरूर होंगे. 2 आप अपने आप में लाइनें लिख सकते हो, 1 और 45. तो इतनी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. परंतु साइलो जो सब ग्रुप होंगे वो 9 ऑर्डर के और 5 ऑर्डर के होंगे. 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम ग्रुप का ऑर्डर 1125 ले लेते हैं, क्या फैक्टर बनते हैं 1125 के? 3 स्क्वायर एंड 5 क्यूब. यदि सब ग्रुप की बात की जाए, इसके पास एक ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा, 3 का भी होगा और 9 का भी होगा. ये यहां से पता लग रहा है. यहां से 1 का होगा, 5 का होगा, 25 का होगा और 125 का होगा. टोटल मिला के हम इतने कह सकते हैं. इसके साथ साथ 1125 कह सकते हैं. बट यदि साइलो सब ग्रुप की बात की जाए तो 3 साइलो सब ग्रुप जो होगा उसका ऑर्डर होगा 9 और 5 साइलो सब ग्रुप जो होगा उसका ऑर्डर होगा जी 125. ओके, अब होमवर्क है आपके लिए 360. ठीक है. अब 1 बाय 1 हम धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं ताकि हम इस क्वेश्चंस को धीरे धीरे सोल्व कर सके. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना. 11वां क्वेश्चन है गैलियनी किताब का. सपोज
that G is a group of order 48. Show that the intersection of any two distinct silos, two subgroups of G has order 8. ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। मैंने कह दिया कि साइलो सबग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ G 48 है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ की 2 की पावर 4 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, बट 2 की पावर 5 डिवाइड नहीं करता। तो साइलो 2 सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वो कहती है साइलो फर्स्ट थ्योरम, और उसका ऑर्डर कितना होगा 60। तो हमने मान लिया है कि H और K दो साइलो 2 सबग्रुप है, दोनों का ऑर्डर कितना है 60। अब बात करनी है इंटरसेक्शन की। दो सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन सबग्रुप होता है, देयर ऑर्डर कैन बी आइदर 1, 2, 4, 8 और 16। 16 नहीं हो सकता क्योंकि आपने कहा कि दोनों डिस्टिंक्ट हैं। आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटी बच गई। पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं। ऑर्डर ऑफ H 16, ऑर्डर ऑफ K भी 16। इफ H इंटरसेक्शन K 1 होता तो इसमें इसका ऑर्डर कितना होता, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाई H इंटरसेक्शन K। ठीक है, तो इट्स विल बी कम्स टू बी मोर देन 48, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी संख्या ग्रुप से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि हम इसको 2 ले लेते तो भी ये 48 से ज्यादा बनता, 4 ले लेते तो भी 48 से ज्यादा बनता। इट मीन्स हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए की पॉसिबिलिटी बची है, वो क्या है 8। करेक्ट। दिस 11 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सून वी कम विद यू विद ए वन अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ओके। टुडेज फर्स्ट लेक्चर ऑन सिलो थ्योरी इज कंप्लीटेड।